very much indeed. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so embarrassed. That's it, lovely. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. And now I would like to request Lokamitra to say few words, and Dhamachari Amok Siddhi will translate for Lokamitra. Venerable Thich Nhat Hanh, special guests, brothers and sisters in the Dhamma. पूज्य थिक नाथ नान जी, यहाँ सभी आदरणीय अतिथिगण और सभी बंधुओं और बहनों, I have to feel, I say I'm a bit embarrassed about what you've just done. तो जो कुछ अभी आपने किया है उसे थोड़ा सा मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है. And I would like to talk about it more, but today we have a very, very special guest, Venerable Thich Nhat Hanh. तो इसके बारे में कुछ मैं अधिक कहना चाहूँगा, लेकिन आज हमारे पास बहुत ही विशेष ऐसे अतिथि है पूज्य थिक नाथ हान जी, And who exemplifies peace much more than me, as my family and colleagues will tell you. तो जैसे कि मैं हूँ, मेरे तुलना में बहुत अधिक वे शांति को प्रस्तुत करते हैं, शांति को एक प्रकार से उसके प्रतीक है. So I would, however, like to take the opportunity just to say a few words to welcome to Venerable Thich Nhat Hanh. तो मैं ये मौका लेना चाहूँगा कि जो पूज्य थिक नाथ नान जी है उनका स्वागत के लिए मैं कुछ शब्द कहूँ. He is one of the most famous, well-known teachers in the Buddhist world today. बौद्ध जगत में वे अभी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जाने माने ऐसे बौद्ध गुरु है. And he's known for many special teachings. और वे उनके बहुत से विशेष शिक्षा के लिए जाने जाते हैं. He's known especially for his emphasis on mindfulness, the most basic Buddhist practice. और खासकर जो स्मृति का अभ्यास है, जो बौद्धों की बहुत ही मूलभूत ऐसी शिक्षा है, उसके लिए वे जाने जाते हैं. He's known, I found personally very helpful his teaching on walking meditation. और खासकर मैंने स्वयं ये बात बहुत ही मेरे लिए मददगार साबित हुई, उनका जो चलने का ध्यान है वो शिक्षा. He's known for his encouragement and love for children. और इस बात के लिए भी वे जाने जाते हैं कि जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा देते हैं, बच्चों के लिए उनके मन में बहुत प्यार है. And he's known especially for what he termed socially engaged Buddhism. और खासकर इस बात के लिए वे जाने जाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है कि सोशली एंगेज बुद्धिज्म, यानी बुद्ध धम्म जो सामाजिक कार्य में रत है. He reminded the world that Buddhism is not just a personal practice. Buddhist practice implies engaging with the world. तो उन्होंने जगत को इस बात की याद दिलाई कि बुद्ध धम्म केवल आपके व्यक्तिगत आचरण के लिए नहीं है, तो आप जगत के साथ भी एक प्रकार से कार्य करते हैं, जगत के साथ भी आप रहते हैं. This is basic Buddhism. यही मूलभूत बौद्ध धम्म है. We remember after the Buddha's first rainy season, after he was enlightened, he said to his enlightened disciples, you remember what he said? तो पहले वर्षावास के बाद में उन्होंने अपने जो शिष्य है उनको उन्होंने क्या कहा, आपको याद आता है? Bahujan Sikhaya Bahujan Hitaya. Sorry, you don't need to translate that, do you? Go out for the happiness and welfare of all beings. तो उन्होंने कहा कि बाहर जाइए लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए. So this was the teaching the Buddha gave after that first rainy season retreat. So it's absolutely basic to Buddhism. तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहले उनके वर्षावास के उस शिविर में बुद्ध की ये पहली शिक्षा है. Now, I hope that Venerable Thich Nhat Hanh, he's done us a great favor by coming here. He's not a young man. He looks younger than his years, but you'll be surprised to know he's 83 years old. तो सही में मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि पूज्य थिक नाथ नान जी यहाँ आए हैं. वैसे वे बहुत अभी युवा नहीं है, वो दिखाई देते हैं, लेकिन अभी उनकी उम्र जो है 83 साल की है. I very much doubt that I will be able to travel as he does when I'm 83. तो
I doubt that I'll be able to do what he does when I'm 83. तो मुझे भी लगता है कि जब मैं भी 83 साल का होगा तो जो कुछ वे कर रहे हैं मुझे भी वही करना पड़ेगा। His program is quite remarkable for someone of that age. और इस उम्र में उनके इस प्रकार के कार्यक्रम करना यानी सही में बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। But I understand that he was very, very keen to come to Nagpur to meet us. लेकिन मुझे पता चला है कि नागपुर आने के लिए हम सबसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। So I hope that he will forgive me if I just speak for 5 minutes about the situation here and then hand over to him. तो मुझे लगता है कि वे मुझे क्षमा करेंगे कि यहाँ के परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में अधिक बोलना चाहता हूँ, बाद में मैं माइक उनको सौंपूंगा। Very, very happy to have him here. Welcome him to Nagaloka. तो नागलोक में यहाँ उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। This is dedicated to 2 things. ये 2 चीज़ों के लिए समर्पित है। First of all, it's dedicated to training. पहली बात प्रशिक्षण के लिए ये केंद्र समर्पित है। There are maybe 30 million newly converted Buddhists in India today. अभी भारत में मतलब लगभग 30 मिलियन यानी कि 10 crore. हाँ 3 करोड़ जो लोग हैं भारत में हैं। Boulder. बौद्ध है। Boulders are in it. So most of those, the majority of those, get almost no meaningful teaching of the Dhamma. लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग जो है उनको जो भी अर्थपूर्ण बुद्ध धर्म की शिक्षा है वो शिक्षा नहीं मिलती। But the enthusiasm for the Dhamma is growing so fast that there could in 10, 20 years be 50, 60, 100, 200, even more million people. तो बुद्ध धर्म के बारे में उनकी रुचि अभी इतनी बढ़ रही है पढ़ने की, तो वो धीरे-धीरे लाखों करोड़ों में उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। There are 200 million scheduled caste people in India, and most of those are open to Dr. Ambedkar, and those who are open to Dr. Ambedkar would eventually be open to the Dhamma. तो इस प्रकार से मतलब लगभग 20 मिलियन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो बाबा साहब के लिए बुद्ध धर्म के लिए खुले हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं। Not only from the scheduled caste community, there are many others from other communities. तो केवल मतलब जो दलित लोग हैं उनसे ही नहीं, तो दूसरे मतलब जाति के जो लोग हैं वो भी इसमें आना चाहते हैं। But no teaching. लेकिन कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं है। If they don't get proper teaching, what will happen? अगर उचित शिक्षा उनको नहीं मिली तो क्या होगा? They either develop strange forms of Buddhism which don't help them change, or they go revert to Hinduism and their place in that system. तो फिर क्या होगा? एक अलग ही विचित्र प्रकार का बुद्ध धर्म वे निर्माण करेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर पीछे जो जहाँ से आते हैं हिंदू धर्म में उसी में वो वापस चले जाएंगे। So we are trying here at Nagaloka through our very small training program to counteract that. तो हमारे ये नागलोक में एक छोटा सा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चला रहे हैं ताकि इस पर हम कुछ मतलब कर सके, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। We have a training center for this year. We've got 77 people. They stay here for 1 year, 2 years, or 3 years. तो हमारा ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यहाँ 77 लोग अभी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए वे यहाँ रुकते हैं। They learn basic Buddhist teachings and basic meditation practices. तो जो भी मूलभूत बुद्ध धर्म है, मूलभूत ध्यान की शिक्षा है, उसको वे यहाँ प्राप्त करते हैं। They live a community, a Buddhist community life. और फिर जो बौद्धों का कुल का जो जीवन है, उस जीवन को यहाँ वे जीते हैं। And we find that after 1 year, most of them have changed their lives radically, and they go back, help to communicate what they've learned, and often help to start social projects. और फिर हम देखते हैं कि 1 साल में उन विद्यार्थियों में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है, और फिर वे वापस जाकर अपनी जगह में बुद्ध धर्म का कार्य शुरू करते हैं। It's not only the Nagaloka that is doing this outward going work. In many other ways, our movement is going out. We have what we call our Dhammakranti work, which is organizing retreats and lecture tours all over India. तो केवल ये नागलोक का प्रशिक्षण केंद्र ही नहीं, तो हमारा जो आंदोलन है उसमें धम्म क्रांति है, अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जहाँ शिविरों का आयोजन करके बुद्ध धर्म का जो प्रचार है, प्रसार है, उसको किया जाता है। Buddhism started in India again in Maharashtra. Now it's spreading to every single state. बुद्ध धर्म की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में यहाँ फिर से हुई है, दोबारा हुई है, अभी वो अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। The second principle of Nagaloka is international interaction. और दूसरा नागलोक का एक तत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों से आदान प्रदान हो। My friend Dr. Yo here says that Nagpur is the center of the new Buddhist world. तो मेरे जो मित्र है आदरणीय डॉक्टर यो कहते हैं कि नागपुर जो है बौद्ध जगत का भी केंद्र है, नया केंद्र है।
when I started visiting different Buddhist countries and meeting Buddhists from different countries, I found that no one knew, or very, very few people knew about Baba Saheb's great work in converting to Buddhism. जब मैं बौद्ध राष्ट्रों में घूम रहा था, यात्रा कर रहा था, तब मैंने पाया कि किसी को भी ये मालूम नहीं कि बाबा साहब का क्या कार्य है, या बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं, धर्मांतर के बारे में जानते हैं। People say to me, "Oh, we visited Buddha Gaya Sarnath. We didn't see any Buddhists." लोग मुझे कहते थे कि हम बुद्ध गया गए, सारनाथ गए, लेकिन हमें कोई बौद्ध वहाँ नहीं मिला। They don't realize that in the slums in Sarnath, just 5 minutes from the Mulagandhi Vihara and so on, there are Buddhists living in the most terrible conditions. तो ये लोग ये बात नहीं जानते कि वो सारनाथ के मतलब मूलगुंदा जो कुटी विहार है, उसके पड़ोस में ये एक झोपड़पट्टी है जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं। There are Buddhists today everywhere in India. आज भारतवर्ष में हर जगह बौद्ध है, But until now, they have not been taken seriously by the Buddhist world. लेकिन अभी तक जो बौद्ध जगत है उन लोगों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। This is sad two ways. अब दो प्रकार से ये चीज़ बड़ी दुखदाई है। It's sad because they cannot benefit from the experience of their brothers and sisters in the Dhamma abroad. तो ये दुखदाई इसलिए है कि जो विदेशों में उनके जो बौद्ध भाई बहनें रहते हैं उनसे उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। Dr. Yo made this point earlier in his talk. तो इसके पहले डॉक्टर यो जी ने यह मुद्दा अपने प्रवचन में बताया है। But there's one thing he left out, which I'm sure he would agree with me, but I hope he won't mind me saying. तो मुझे लगता है कि एक बात उन्होंने छोड़ दी, मुझसे वे सहमत हो गए और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगेगा। I don't think it's just one-way communication. I think it's two-way communication, two-way benefit. तो मुझे लगता है कि ये जो भी संवाद है वो एक तरफा नहीं है, दो तरफा इस प्रकार से संवाद होना चाहिए, उससे लाभ होगा। I think the Ambedkarite Buddhist movement has an enormous amount to give the wider Buddhist world. तो मुझे ऐसा लगता है कि आम्बेडकरी बौद्ध धर्म जो है पूरी ये विशाल जगत को देने के लिए बहुत कुछ उनके पास में है। They've got incredible energy, incredible dedication, incredible inspiration. क्योंकि उनके पास बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का समर्पण है, बहुत ही जबरदस्त ऐसी प्रेरणा है, बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का उत्साह उन लोगों में है। If you think that 2 generations ago, the people in front of us here were cruelly treated and called as untouchable, the most discriminated people in the world. तो दो पीढ़ी के पहले जो लोग थे उनको बड़ी क्रूरता से उनके साथ एक विषमता बरताई गई, उनको अछूत कहा गया। They make up 1/6 of the population of India, 200 million people today. तो 200 करोड़ इस प्रकार की उनकी लोक संख्या जनसंख्या है। Still, they suffer the most atrocious atrocities and discrimination. तो आज भी बहुत ही भयंकर इस प्रकार के अत्याचार उन पर होते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से उनके साथ विषमता बरती जाती है। I don't need to remind you of what happened at Kalenji 2 years ago, 100 kilometers from here. तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर खैर लांजी में क्या हुआ था ये याद दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है। Brothers and sisters of people here were brutally raped, otherwise sexually assaulted and murdered. तो भाई और बहनों, यहाँ लोगों पर बड़े बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया, बहुत ही बर्बरता से उनको मारा गया है। Dr. Ambedkar's greatness was finding a way, not that worked on, fanned that resentment, not a way of violence, but a way of peace, a way of transformation of people's innermost, deepest attitudes. लेकिन बाबा साहब का जो कार्य है लोगों में इस प्रकार से द्वेष या हिंसा फैला कर नहीं है, तो एक प्रकार से अच्छी तरीके से लोगों में मैत्री से इस कार्य को बढ़ाया जाए। In the East, Buddhism has been challenged for many years, and in most parts, except perhaps for Taiwan and 1 or 2 small pockets, it is declining. पूरब में, पूर्व देशों में बुद्ध धर्म को बहुत सारे अलग अलग आह्वानों का सामना करना पड़ा। अगर ताइवान और कुछ दूसरे देश छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे जगह ये जो स्थिति है बहुत ही बिगड़ चुकी है। I understand in Vietnam now there's a resurgence of Buddhism too, and I think partly due to Master Thich Nhat Hanh's work. अभी मैंने सुना है कि वियतनाम में फिर से बुद्ध धर्म की फिर से अच्छी शुरुआत हो रही है, और ये इसलिए भी है कि पूज्य थिक नhat hanh जी उनके कार्य की वजह से। In the West, where I come from, Buddhism is growing, but it's largely confined to a small section of the middle classes. लेकिन पश्चिम में भी बुद्ध धर्म भी बहुत फैल रहा है, लेकिन बहुत अधिक ये जो मध्यम वर्गीय है उन्हीं तक ये मतलब सीमित रह गया है। Here you've got people from the most oppressed sections of society
trying desperately to change their lives through the practice of the Dhamma. लेकिन यहाँ ऐसा समाज है जो बहुत ही पीड़ित शोषित ऐसा समाज है जो अपने जीवन में एक प्रकार से परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही लालायित है. And this is a source of inspiration, encouragement to everyone throughout the world. और पूरे जगत के लिए यही ऐसा स्रोत है जहाँ से उनको बहुत ही प्रेरणा और उत्साह मिल सकता है. You listen to me every year and sometimes more often. Forgive me for speaking so much. तो हर वर्ष आप मुझे सुनते रहते हैं, अलग अलग प्रसंगों में सुनते हैं, तो मुझे आप क्षमा करें, आप अधिक समय तक आप मुझे सुन रहे हैं. I haven't meant to take up time from Venerable Thich Nhat Hanh. तो मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि जो पूज्य थिक नाथ नान जी है उनका मैं समय ले लूं. But I just wanted to give my own personal welcome. लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करना चाहता था. And I know from what I've heard from very dear friends like Dr. Yo and Shantam and others that he has a very, very strong feeling for this situation. लेकिन जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर यो शांतम जी, इनसे मैंने सुना है कि यहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके मन में बहुत ही गहरा ऐसा भाव है. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद लोक मित्र जी. अभी इसके पश्चात मैं पूजनीय बनते लोक मित्र जी को ये जो पुरस्कार किया है उनके लिए तो ये गर्व की बात जरूर है, लेकिन उनका जो पुरस्कार है वो हम सभी का पुरस्कार है. इतने ही नहीं, लेकिन आशिया खंड ने बाबा साहब आंबेडकर के धम्म क्रांति को